Today, in the media conference with Lal Goel, which is brought to you by V4 News, Caru News, V4 Stream, Malnadu TV India, News Gaon Se, Samvad Sarokar News, Bharat Post News, Gyan, and Organ Donation India Foundation. Our endeavor is to enlighten you with the current topic. And today's topic is not only current, but very, very relevant. The topic is remarriage, pros and cons. But before I will go on the main topic, I would like to inform you that today world is observing No Smoking Day. No Smoking Day is observed every year on the second Wednesday of March to encourage people over the world to quit smoking. The first No Smoking Day was on Ash Wednesday in 1984, and it now takes place on the second Wednesday in March. Smoking is one of the worst habits one can adopt. The health risks are known to all, but still thousands of youth between 12 to 17 years of age start smoking each day. Some start it out of curiosity, and others might just want to look like grown-ups. Media conference with Lal Goel sincerely hope that by observing No Smoking Day, we will be able to create more awareness about the ill effects of smoking. Now, coming to our main topic, remarriage, pros and cons. Remarriage is a marriage that takes place after a previous marital union has ended, as though a divorce or widowhood. Some individuals are more likely to remarry than others. The likelihood can differ based on previous relationship status. For example, divorced versus widowed. Level of interest in establishing a new romantic relationship, gender, culture, and age, among other factors. Those who choose not to remarry may prefer alternative arrangements like cohabitation or living apart together. Remarriage also provides mental and physical health benefits. However, although remarried individuals tend to have better health than individuals who do not repartner, they still generally have worse health than individuals who have remained continuously married. Remarriage is addressed differently in various religions and denominations of those religions. Someone who repeatedly remarries is referred to as a serial wedder. Mr. Vivek Pawar, CEO of 𝐂𝐀𝐑𝐔 reveals that, I quote, on a daily basis, around 300 people register on our website, and the number is on a steady rise. The reason being that today our society is opening up to accept a divorce with a lot more cases. It is rising above the inhibitions it had attached with second marriages until even a few years ago. Even parents of a lot of divorcees contact us to get their kids remarried, unquote. Seconding his position, Mr. Vibhas Mehta, business head of Shaadi.com, says, I quote, there has been a considerable increase in the number of divorcees registering on our website, which stands close to 12% as of now. Also, the age of a divorcee has decreased considerably. Today, a lot more people in their late 20s and early 30s are getting divorced. Such individuals want to start life afresh and remarry, and this shows the new face of a changing Indian society. Now, to discuss this very, very important point about the remarriage, pros and cons, or benefits, or and the challenges or the harms of remarriage, we have a very elite, knowledgeable, those who are authority in this subject, panelists are with us.
I would like to invite my first panelist guest, and he is Dr. Rajiv Anand. Dr. Rajiv Anand is senior psychiatrist and marriage counselor. Dr. Rajiv Anand passed his MBBS in 1976 and did MD in psychiatry in 1980 from King's George Medical College, Lucknow. He opted to serve his country when it was very common to settle abroad for a brighter future. He has been serving society with his base in Mumbai. He has clients all over India as well as in many other countries. He was honored with Lifetime Achievement Award by AMA. He has conducted more than 3,000 workshops for different groups and companies with audience size of 10 to 800. His television program on various channels have been widely appreciated for his forthright and practical approach. He is leading in the field of mental and emotional well-being for 41 years. He was president of IMA for 2 times. He was interviewed in several talk shows domestically and internationally. Welcome, Dr. Rajiv Anand, on our show. Dr. Rajiv Anand, today's topic is remarriage, pros and cons. And you being a senior psychiatrist and marriage counselor, I think no one can give the better views about the pros and cons. There are many agencies who are engaged for remarriage or marriage, but give the benefits or demerits or the pros and cons of remarriage. I think you are the best person to give us the details. So remarriage, pros and cons, Dr. Rajiv Anand, please. Thank you, Mr. Lal, for the introduction. Welcome, Jinal, Dr. Jinal, Siddharth Diwan, and Sonal Gada Shah. Am I right in the pronunciation of the name and the surname? Welcome. In fact, आज हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में बात की जाए. और क्यों हिंदी में बात की जाए? क्योंकि बात हो रही है रिश्तों के बारे में. और जब रिश्तों की वर्ड आता है, शब्द आता है, तो रिश्तों का मतलब दिल के रिश्ते होते हैं. शायद ही हमने कभी सुना होगा कि दिमाग के रिश्ते होते हैं, क्योंकि अगर रिश्ता है तो दिलों का होता है, नहीं तो नहीं होता. और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, वो हम पिछले 1 साल से ज्यादा समय से हम उसके बारे में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब समय आएगा, कब इस विषय पर बातचीत होगी. और हमें खुशी है कि आज मिस्टर लाल ने, एंकर पर्सन ने इस टॉपिक को लिया, क्योंकि ये विषय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है, सामायिक होता जा रहा है, जिससे रेलिवेंट कहते हैं, टॉपिकल कहते हैं. क्योंकि जिस रिश्ते की बात हम कर रहे हैं, शादी, वो रिश्ता था हमारे दादा दादी, नाना नानी का, हमारे माता पिता का, हमारे जितने भी पूर्वज थे, वहां रिश्ता हुआ करता था. और जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, वहां बिजनेस आ गया है. शायद अब से 40-50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि शादी.com होगा, secondmarriage.com होगा, so on so forth. अब रिश्ते में बिजनेस आ गया है. और ये बड़ी अजीब सी बात भी है, दिलचस्प बात भी है और दुर्भाग्य की बात भी है कि आज रिश्ता करने से पहले लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप बैठकर तय करते हैं तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारे पास घर है कि नहीं है, तुम अकेले रहते हो कि तुम्हारे साथ, एक वर्ड जो मैंने सुना जो मुझे बड़ा प्रिय लगा, कि तुम्हारे साथ ओल्ड फर्नीचर भी है क्या. मुझे नहीं पता था 1 साल पहले इस ओल्ड फर्नीचर का कोई और मतलब भी है क्या, कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स भी रहते हैं क्या. अगर तुम्हारे पास ओल्ड फर्नीचर है तो हम शादी नहीं करेंगे अपनी लड़की की, कि हमारी लड़की को तो ओल्ड फर्नीचर पसंद नहीं है. और उसके एसेट्स की बात, उसकी इनकम की बात, उसके एफडी की बात, उसके फ्लैट का ओनरशिप का है कि रेंट पर है, सारी बातें बिजनेस की तरह की जाती हैं. और शायद काफी लोग कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, हम अपनी लड़की की सुरक्षा को सोच रहे हैं. मगर साथ साथ ये भी है कि शादी शुरू होने से पहले ही काउंटिंग, कैलकुलेशन, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, ये सब शुरू हो जाता है. ये जो सब माइंड के मैटर हैं, ये सब माइंड के फंक्शन हैं, दिल के नहीं. क्योंकि जहां हम काउंटिंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बस इतनी सैलरी, तुमने एमबीए किया, तुम्हें खाली 30,000 मिलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है. तो जहां हम हर चीज के लिए शुरू से कमेंट और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और जब हम हर चीज को नाप तोल रहे हैं, वहां हम बिजनेस कर रहे हैं.
दूसरे शब्द में कहा जाए तो शादी की शुरुआत ही एक बहुत कमजोर नींव पर हो रही है आजकल। हर लड़की, मैं लड़की से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 दिन पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया। साल में एक बार लोग इंटरनेशनल वुमेन सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा है, वेस्ट से नया कंसेप्ट आया है। भारत में तो पता है कि हम लोग पूरे साल के 365 दिन विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। मिस्टर लाल और मैं उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहां हम स्त्रियों की हमेशा सम्मान करते हैं। साल में एक बार उनको फूल या गुलदस्ता नहीं देते, हम साल भर सम्मान करते हैं। हमारी माँ थी, हमारी बहन है, हम सबका सम्मान करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन जो नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है कि वहां वो लड़कियां जो शादी में एंटर कर रही हैं, उनको सम्मान बाद में चाहिए। उनको पहले पता करना है कि हस्बैंड की इनकम क्या है, फ्लैट है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, मुझे घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। तो वो शुरू ही करती हैं अपने हस्बैंड को नापने तोलने से। और डेली बेसिस पर ब्रॉडकास्ट होता है अपनी माँ को, और डेली बेसिस पर माँ की तरफ से हॉटलाइन रहती है, क्या हुआ, क्या खाना बना, क्या सब्जी बनी, कहाँ ले गया घुमाने, क्या नई ड्रेस लेकर आया, कितने पैसे खर्च कर रहा है, कितने नहीं कर रहा है, समझता क्या है अपने आप को, सुना देना उसको, तो मेरे बाप का घर है, मेरे बाप के घर में कमरा है मेरे लिए, वापस आ जाऊंगी। तो शुरू से एक कमजोर नींव पर मैरिज शुरू हो रही है, जहां लड़का, ऐसा नहीं है कि मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं एक निष्पक्ष हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि समाज में जो कुछ घटित हो रहा है दिन रात 24 घंटे 365 दिन, उसको कुछ नजदीक से दिखने का हमारा भी सौभाग्य होता है। जहाँ लड़का हमेशा एक एग्जामिनी की तरह है कि वो परीक्षा दे रहा है और उसके ऊपर परीक्षक बैठे हैं, एग्जामिनर बैठे हैं, सास हैं, ससुर हैं, उनकी बेटी है, जो दिन रात देख रहे हैं कि तुम मेहनत नहीं करते, तुम ऑफिस लेट क्यों जाते हो, तुम सुबह क्यों नहीं जल्दी उठ जाते, तुम एक्स्ट्रा वर्क क्यों नहीं लेते, ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेते, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ, जल्दी से अपना फ्लैट हो, जल्दी से अपनी कार हो, फ्लैट है तो बड़ा फ्लैट हो, 1 BHK 2 BHK हो, छोटी कार से बड़ी कार हो, हम फॉरेन घूमने जाएं। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जहाँ शादी में ज्यादा और जल्दी, ज्यादा और जल्दी, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस में मैरिज की नींव को, मैरिज की जड़ को मजबूती नहीं होने दिया जाता। और पहली मैरिज में ही हम अपना वो सब कुछ नहीं दे पाते जो दिया जाना चाहिए। मैंने कहा कि मैं हिंदी में बात करूंगा इसलिए कि बहुत सारे प्रांतों में बैठे हुए बहुत सारे युवा और युवती जो हैं, चाहे उसको लाइव सुनेंगे चाहे बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, लेकिन उनको ये संदेश जाना चाहिए कि वेडिंग का, मैरिज का मतलब क्या था। दूसरा वर्ड है वेडिंग, और वेडिंग से ही ऑलमोस्ट राइमिंग वर्ड है वेल्डिंग, कि जो हम रिश्ता बनाते हैं किसी एक इंसान से, करोड़ों लोगों की दुनिया में किसी एक इंसान से, हम उसे चुनते हैं, हम उसके साथ सगाई करते हैं, हम उसके साथ शादी करते हैं। हम उसके शादी करने के लिए कितने समारोह, कितने सेलिब्रेशन, कितने कपड़े, कितनी ज्वेलरी, कितनी बैंड बाजा बारात, कितनी पार्टी का इंतजाम करते हैं। तो वहां हम क्या दिल से भी उतनी ही मेहनत करते हैं कि जिस इंसान के साथ हम रिश्ता बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम या हमारे अभिभावक या हमारे माता पिता लाखों रुपए जिंदगी भर की सेव की हुई कमाई तो खर्च करते हैं उस मैरिज में, उस पार्टी में, उस फंक्शन में। लेकिन क्या हमने अपनी समझ से, और अगर हमारे पास समुचित समझ नहीं है तो हम सही सोच से, हम समझ लेकर क्या हम उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जिसके साथ हम रिश्ता बनाने जा रहे हैं वो रिश्ता अगले 50 साल का है, 50 साल का, 5 साल का नहीं, 5 महीने का नहीं। और जो चीज 50 साल में होगी वो धीरे धीरे होगी। हम कहीं भी कोई सीड डालते हैं तो सीड डालते ही तुरंत पौधा, तुरंत फल, तुरंत फूल नहीं निकल आता। मगर दुर्भाग्य है कि नई जनरेशन की काफी लड़कियां और उनके पीछे उनकी माताएं भी शायद इस गलतफहमी में हैं कि शादी होते ही सारे सुख तुरंत मिल जाने चाहिए। ये बात कहने की जरूरत मुझे पहले हाफ में इसलिए पड़ रही है कि शादियां टूट रही हैं बहुत चिंताजनक रूप से, बहुत अलार्मिंग ट्रेंड पर, जैसा मिस्टर लाल ने भी कहा। सेकेंड marriage.com के एग्जीक्यूटिव का जो कमेंट कहा, या शादी.com के लोगों को कहा, उनके बारे में बताया कि उनके ऑब्जर्वेशन क्या है, उनके पास डेटा है, लाइव डेटा है, शादियां टूट रही हैं। मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि आज की डेट में कोई शादी, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, 10 में से 7 मैरिजेस आराम से सुख से 5 साल पूरे नहीं कर पाते। 5 साल से पहले ही उनकी जिंदगी में अर्थक्वेक आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बदल गई है। तो हम लोग शादी को 50 साल लंबा रिश्ता मानकर चलने के लिए तैयार नहीं है, एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, टॉलरेट करने को तैयार नहीं है।
एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, हम शुरू से बैठे हैं, छोड़ देंगे, क्योंकि हमको दूसरी तरफ की पिक्चर जो दिखाई जाती है फिर कर लेंगे। जैसा आई एम श्योर कि मिसेस दाद जो काफी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुके हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी लर्निंग, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिम। सो विद जनरल, ऑल थ्री ऑफ देम आर इन रिप्रेजेंटिंग द यंगर जनरेशन, कि एक नया कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया लोगों के, टूट जाएगी तो क्या होगा। जैसा शुरू में हम लोगों ने सुना कि वो जो एक स्टिग्मा था, वो जो एक गलत माना जाता था, हम लोगों ने कभी बचपन में नहीं सुना था कि शादी चलती चलती टूट जाएगी। नहीं, सवाल ही नहीं था। किसी बेचारे की अनफॉर्चुनेटली किसी का डेथ हो जाए, कोई विडो हो जाए, कोई विडोर हो जाए तो बात अलग थी। बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में डाइवोर्स अगर होता था तो शायद काफी दिनों के बाद, तो शायद बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ होने के बाद पूरे शहर में किसी एक का डाइवोर्स होता था, और उस समय शादी दोबारा होने की संभावनाएं या उसको समाज स्वीकार कर लेगा वो बहुत कम होती थी। मगर आज ये बात सिर्फ हम लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हर छोटे से छोटे शहर में अब एक नई मान्यता उभर कर आ रही है कि दूसरी शादी कर लेंगे। मैं कई बार इसको थोड़ा सा लाइट वे में कंपेयर करता हूँ कि जैसे लोगों की अफोर्डेबिलिटी कार खरीदने की बढ़ती जा रही है, और जैसे हमारे बहुत सारे आदरणीय बैंक हमको लोन देने के लिए रोज दिन में 10 बार घंटी बजाते हैं, और बहुत सारे लोग पहली कार लेने के बाद दूसरी कार भी लेने जाते हैं, दूसरी के बाद तीसरी लेने जाते हैं, वैसे सेकंड कार का मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारी जगह आपको सेकंड कार का मार्केट मिलेगा। बहुत अच्छी कार होंगी, शायद 1 साल 2 साल की कार होंगी, लेकिन वो उनका कार का मार्केट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जो शायद 50 साल पहले नहीं था। उसी तरह सेकंड मैरिज का मार्केट बढ़ता जा रहा है। और अगर पहली मैरिज में ही हमने अपना वो सब कुछ नहीं दिया, और वो सब कुछ का मेरा क्लियर मतलब है कि हमारे बेस्ट गुण, हमारे बेस्ट एफर्ट्स, हमारे बेस्ट इमोशंस, हमारे बेस्ट फीलिंग्स, हमारे बेस्ट थॉट्स, हमारे बेस्ट एक्शंस, हमारे बेस्ट इन्वेस्टमेंट और बेस्ट इंटरेस्ट हमने उस मैरिज में नहीं दे पाए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि कोई जानकर नहीं दे पाया, ऐसा भी कई बार होता है कि हम देना चाहते हैं मगर सामने वाला हमसे वो हमारा बेस्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं, या हम देना चाहते हैं मगर सामने वाला हमें इंकरेज करने की बजाय डिस्करेज कर रहा है। और वहां भी उन केसेस में भी बहुत कुछ बदला भी जा सकता है, और बदला भी गया है, क्योंकि जो प्रैक्टिस हम पिछले 44 साल से कर रहे हैं मैरिज काउंसलिंग की, वहां हमने इन बातों को देखा है कि अगर लोग दिल खोल के, दिमाग खोल के, बिना किसी हिचक के किसी विशेषज्ञ से बात करें, किसी कंसल्टेंट से बात करें, किसी मैरिज काउंसलर से बात करें, तो उनके आगे जो आंखों पर पर्दा आ जाता है कि कुछ नहीं हो सकता हमारी मैरिज में, वहां बहुत कुछ हो सकता है। तो कई बार ये होता है कि जो बेस्ट एफर्ट्स हम देना चाहते हैं, बेस्ट स्माइल, बेस्ट इमोशन, बेस्ट सपोर्ट, बेस्ट फीलिंग, वो हम नहीं दे पाते, देना चाहकर भी नहीं दे पाते, क्योंकि सामने वाले को हमसे लेने का सहूर नहीं है या तहजीब नहीं है, या उसको पता नहीं है कैसे हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। इनफैक्ट वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द वर्कशॉप वी कंडक्टेड, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर, क्योंकि हमें पता नहीं है हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। हम समझते हैं कि हम उसको डंडे के जोर पर कहेंगे कि मुझे पिक्चर लेके चलो, मुझे फॉरेन ट्रेवल लेके चलो, मुझे गिफ्ट लेकर दो। हम ये समझते हैं कि हमारे पास कंट्रोल है उसको नचाने का, खड़ा करने का, बैठने का, जो एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। तो जब उन केसेस में, जिन केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, हम पहली मैरिज में अपना बेस्ट नहीं दे पाते, और अपनी आंखों के सामने अपनी पहली मैरिज को धीरे धीरे पिघलते हुए, जैसे आइस का क्यूब होती है, धीरे धीरे सामने पिघलती चली जाए, और आप देख रहे हैं कि आइस पिघल रही है। ऐसे आप देखें कि कोई पेड़ जो है उसको पानी नहीं दिया जा रहा है, वो पेड़ मर रहा है, पत्तियां मुरझा रही हैं, पत्तियां गिर रही हैं, पेड़ मुरझा रहा है, पेड़ गिर रहा है। हम अपनी आंखों के सामने अपनी मैरिज को टूटते हुए, गिरते हुए देखते हुए, फिर भी हम कुछ नहीं करते, फिर भी हम किसी से कोई सलाह नहीं लेते, क्योंकि हमारी जिद है कि हम सही हैं, हमारी जिद है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। और जब हम सही हैं तो हम सही हैं, हमें किसी से कुछ जानने पूछने की जरूरत नहीं है। और हमारे पीछे जो हमारे गाइड होते हैं, काफी केसेस में हमारे माँ बाप भी होते हैं, काफी केसेस में हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, कजन्स भी होते हैं, वो भी हमको हमारी सुनी सुनाई बात पर और बहुत फ्रैक्शनेटेड बात पर, बहुत सीमित जानकारी पर ओपिनियन बना लेते हैं। लड़का ही ऐसा है, यू डोंट डिजर्व दिस बॉय, लड़की ही ऐसी है, यू डोंट डिजर्व दिस गर्ल।
छोड़ दो, तुम यंग हो, दूसरी शादी हो जाएगी, बजाय उस रिश्ते में समझौता, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, रिकॉन्सिलेशन, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के जो हमारे शुभचिंतक, वेलविशर, माँ बाप होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो हमें इंस्टिगेट करते हैं, तोड़ दो, तुम गुड लुकिंग हो, तुम्हारी इनकम है, तुम अभी यंग हो, तुम्हें तो बहुत शादी के ऑफर मिल जाएंगे। तो वहां से हमारी इच्छा स्वयं खत्म हो जाती है उस शादी में कुछ और अच्छा करने की, तो शादियां टूट रही हैं। ये बात मैंने पूर्वार्ध में कही है, फर्स्ट हाफ में कही है, मैं सेकंड हाफ में डिटेल में ये भी बताना चाहूंगा कि रीमैरिज के बाद क्या है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा अंश बता दूं। जब आपने पहली शादी में ही शादी के कंसेप्ट को ही नहीं समझा कि शादी चीज क्या थी, मैरिज, वेडिंग, वेल्डिंग। वेल्डिंग का मतलब क्या था, दो चीजें एक दूसरे में बिल्कुल वेल्ड हो जाती हैं कि उनसे कभी अलग ना हो सके। आप जब कोई वेल्डिंग का प्रोसेस आपने देखा हो तो दो रॉड आपस में वेल्ड हो जाती है, इतनी जितना भी फर्नीचर आप यूज करते हैं, बैठते हैं कहीं भी, उसमें वेल्डिंग प्रोसेस यूज होता है, वरना हम लोग आज जहां भी बैठे हैं जो कुछ कर रहे हैं नहीं कर पाते। तो शादी एक वो संबंध था जिसमें हम जिससे जुड़े हैं उससे हमेशा हमेशा के लिए वेल्ड हो गए हैं। हमारा अस्तित्व उसके अस्तित्व में, उसका अस्तित्व हमारे अस्तित्व में मिट गया है, मिल गया है, मिल गया है, मिट गया है, इनफाइनाइटली, हमेशा हमेशा के लिए। अलग होने का सवाल ही नहीं, एक दूसरे में नुक्ताचीनी, मीन में एक निकालने का सवाल ही नहीं, एक दूसरे की कमजोरियों को मैग्नीफाई करने का सवाल ही नहीं, एक दूसरे को उसके पूर्ण रूप में समझना है, एक्सेप्ट करना है, और फिर एक दूसरे के साथ जिंदगी को आगे अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। मगर जो बात मैं कह रहा हूँ वो काफी लोगों को लगेगा कि मैं किताब पढ़ के कह रहा हूँ, मगर किताब बाहर होती है, मेरे पास अंदर बहुत सारी किताबें हैं अनुभवों की। ये बातें लगेगा ये तो आदर्शवादिता की बात हो रही है, ऐसा कहीं होता है क्या? क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि अच्छी बातें की जाए तो वो आदर्शवाद है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो कुछ और है। प्रैक्टिकल तो वाइफ हस्बैंड को गालियां सुनाती हैं, थप्पड़ी मार देती है, चैलेंज भी करती हैं, कोर्ट में ले जाओ की धमकी भी देती हैं, माँ बाप को भी जेल करा दूंगी वो भी धमकी देती है, बहुत कुछ होता है जो हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और शायद जितना हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, हकीकत में उससे ज्यादा होता है सोसाइटी में। सारी खबरें पेपर तक, सारी खबरें हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती। तो ये बात तो हमने अभी तक की है मैरिज के पहले की। मैरिज के बाद भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे जो बाकी तीन पैनलिस्ट हैं उनके पास काफी अनुभव का खजाना है, और वो तीनों यंग जनरेशन से हैं। हालांकि सब अपनी अपनी उम्र में मेच्योर हैं, यंग का मतलब है कि वो कोई 18 साल के नहीं है, मगर उन तीनों के पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम पहले उनकी बात सुनेंगे और फिर सेकेंड फेज में हम रीमैरिज के बाद उसके क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं या कैसे हम उन प्रॉब्लम को रोक सकते हैं ताकि सेकेंड मैरिज सेकेंड के बाद थर्ड पर ना जाए, हम उसकी बात भी करेंगे सेकेंड राउंड में। बैक टू यू मिस्टर लाल। Thank you very much, Dr. Anand, for giving your views. And Dr. Anand, in the first half, as he mentioned, explained about why the marriages are not successful in India. I'm insisting of India because what he mentioned is basically based on Indian household conditions, and he mentioned that mainly the marriages are not successful because according to Dr. Anand, the maximum responsibilities are the parents, whether the girl's parents or the boy's parents, and they try to poison the mind from the very beginning about from the girl side the boys against the boy, and from boy side against the girl, and that's why this type of marriages are not being successful. He mentioned that marriage, or other word is wedding or the welding. He says it's like a wedding is like welding, or the marriage is like welding, where you have, once you have joined, it's a inseparable joint. You cannot separate that. But nowadays the trend has changed, and as I also read the report that how every day so many new, remarriage proposals have been registered on one site. So one can imagine how much marriages are being broken every day. So according to Dr. Anand, the reason is very clear, because our expectations are very high. And once the expectations are high from the girl side or the boy side, the problem starts. And earlier it was a relationship between husband and wife, between two families, but it's not a relationship now, it's a business deal. How much you are earning, what's your bank balance, etc., etc. So according to Dr. Anand, until unless we will not change our mindset, the marriages are not going to be successful as it was earlier 50-60 years ago. And if it will not be successful, then definitely then a question comes about the remarriage,
But he says in the second phase, he's going to talk about the remarriage, and it should not happen. It is not going to be remarriage. It can be third or fourth marriage. So one has to be understand why it is happening in the first time in the marriage. Then if in case if it is a remarriage, then it should not be repeated again and again. Thank you very much, Dr. Anand, for giving your views. I can understand the pain and agony which you are facing as a counselor, because you are seeing the condition, the society change, what you have seen or I have seen 50, 60 years ago, and now what we are seeing today. It is really, it's very painful for us to see, but this is the effect of the life. Thank you very much, Dr. Anand. Now I would like to invite my next panelist guest, and she is Dr. 𝐂𝐀𝐑𝐔. Dr. Shah is the pediatrician and lactation consultant at Mumbai. She is passionate about babies and thrives to make journey of every mother a happy one. She helps mothers achieve their breastfeeding goals. Being a gold medalist and a university topper, all through, she believes in making a change and did create that when she became one of the first few lactation consultant in Mumbai and created a post for same in prestigious Hinduja Hospital. She is an international faculty for training paramedics, staff, and mothers. She has done numerous workshops with BPNI, Maharashtra, and UNICEF in interiors of India to promote, protect, and support breastfeeding. She has helped more than 5,000 mothers to achieve to do breast crawl and successful initiation within first hour of birth. She is pioneer in induced lactation and has helped more than 100 women feed who have delivered through surrogate and achieved milestones of successful breastfeeding. Welcome, Dr. 𝐂𝐀𝐑𝐔 Shah on our show. Dr. 𝐂𝐀𝐑𝐔, you have heard what Dr. Rajiv Anand mentioned. Although he says that he is keeping his views for the remarriage for the second half, and as we know that you have to go to attend the patients, so that's why he has limited his time. He wants to speak afterwards once because he wants to give the time to you. And you being not only a pediatrician but a lactation consultant, and you are seeing how the present times wives who are coming or the women who are coming after delivering, and what is their mental condition, physical condition. Although earlier it was Dr. Rajiv Anand will vouch that when the marriage takes place, the first aim of the families from both the sides were how to get the baby, how to get the grandchild as early as possible. But nowadays the boys and girls decide how many years they have to wait. They try to delay the delivery of child, and many times we have seen that because of that divorce takes place, the differences comes place, because the unity or the relationship which child develop among mother father is missing. But being a pediatrician and lactation consultant, you are seeing all these types of cases which are coming now after the delivery. We would like to know your views about remarriage, pros and cons. Dr. 𝐂𝐀𝐑𝐔, please. Thank you very much, Dr. Lal. Very good morning to everybody and all the viewers. I will try my best. मैं हिंदी में भी बात करूँ along with English. But एक simple फंडा है मेरा लाइफ का. जब मैं पेशेंट्स देखती हूँ या even it is about my own life कि आज मेरे पास ये कप है, तो मैं ये कप को आधा भरा हुआ देखूंगी कि आधा खाली देखूंगी. Okay? I think we have to view life in the same way. कि हमारे पास क्या है और हम किस चीज से खुश है. या तो मैं ये देखूं कि हमारे पास क्या नहीं है. So I feel no कि lot of women especially expectations, जैसे डॉक्टर आनंद ने भी बोला कि वो expectation level उनके बहुत high होते हैं कि मेरा husband मुझे ये करके दे, मेरा husband मुझे बाहर लेके जाए, मेरा husband मुझे घुमाने लेके जाए. So I think somewhere अगर हम इतने self reliant या self sufficient बन सकते हैं कि we don't need other people to fulfill us, और जैसे अपने आप को खुश रखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें हस्बैंड ही खुश रखे, कि हमें मदर इन लॉ कुछ बोले जिससे मुझे खुशी हो या मेरा बच्चा मुझे खुशी दे. So I feel the most important thing which I would want to talk about mothers जो मैं patients देखती हूँ और even about my family is कि अगर तुम अपने में खुश हो और अगर तुम्हारा घड़ा भरा हुआ है, so probably the chances of you being very happy and you spreading that happiness to other people around you and giving that sense of completeness to your marriage and to your motherhood comes in.
मतलब अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपने बच्चे को क्या खुशी दोगे? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद लॉट ऑफ वुमेन कि उन लोगों को अपना नहीं, मतलब दे आर नॉट सेल्फ फुलफिलिंग देमसेल्व्स, मतलब जो बोलते हैं ना कि अपने आप को प्यार करे या अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए. सो लॉट ऑफ मदर्स हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि अच्छा मेरी डिलीवरी हो गई है, मुझे तो झापा रखनी है या मुझे ये रखनी है, मेरे हस्बैंड तो बस पूरा दिन बाहर होते हैं, वो काम पे जाते हैं. सो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, जो बॉन्डिंग बोलते हैं या जो अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं. सो आई थिंक द मेन बेसिस ऑफ मैरिज वुमेन हैव फॉरगॉटन हियर, and even men to some extent. So I think the main basis, whether first marriage hai ya second marriage hai ya even if it is a live-in relationship or it is any relationship, most important thing which women or men need to focus over here is respect. I think what I am seeing, Dr. Lal, is that in lot of marriages, especially when women are delivering, there is no respect. मतलब एक बोलते हैं ना कि जो एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्या एक रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग ईच अदर द वे यू आर, मतलब एक एक्सेप्टेंस लेवल के हम we are one and we are going to accept each other unconditionally with each other's flaws. मतलब हम कैसे भी हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, बाल सफेद हैं, however you are, you accept each other. So I think every couple, whether you are in first marriage or whether you are in second marriage, you need to accept each other unconditionally. जैसे आज अगर मेरे पास ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं या ADHD वाले बच्चे आते हैं, तो वो माँ अपने दिलो जान लगा के वो बच्चे की ट्रीटमेंट कराती है, चाहे वो बच्चा बोल नहीं पाता है, चाहे वो बच्चा सुसु पॉटी नहीं कर पाता है, वो बच्चा खुद से खा नहीं पाता है. आज ये सब चीजों को कौन प्यार देता है? एक माँ प्यार देती है. क्यों? बिकॉज उसने वो बच्चे को इस दुनिया में लाई है और वो ऐसे अपने बच्चे को जानना चाहती है कि मेरा बच्चा बेस्ट हो और मैं मेरे बच्चे को मेरा 100% दूंगी. तो यही एटीट्यूड हमारे मैरिज में भी क्यों नहीं आता है? यही प्यार जिसको हम अनकंडीशनल प्यार बोलते हैं कि ये मैंने अगर ये बंदे को स्वीकारा है तो ये बंदा कैसा भी है, ये बंदा मेरा है और I want to give my best to this marriage and I want to give my best to this relationship. ये एक जब bonding आएगी और ये जब एक understanding आएगी ना, probably we'll see marriages getting better because उसमें you are accepting the person unconditionally and you are respecting each other. आज जो love बोलते हैं ना हम, ये love की परिभाषा बहुत अलग है सबके लिए, right? I have a dog in the house. हम वो dog को भी इतना ही प्यार देते हैं जितना हम हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं या हमारे husband बोलो या parents बोलो. So I think love has a different language. But if we accept कि ये love हम unconditional करेंगे and हमारा 100% देंगे, so I think probably relationships can be more and more successful and we will not see marriages breaking down. Especially after delivery, what happens to a woman is because she goes through a lot of changes, lot of hormonal changes. So because of those hormonal changes, उसको लगता है कि हाँ मैं अभी मेरी बॉडी मैं मोटी हो गई हूँ या मुझे अभी मिरर में देखने का टाइम नहीं मिल रहा है या मुझे तैयार होने का टाइम नहीं मिल रहा है. I have seen so many marriages breaking down at that point of time because the husband feels कि now the woman is not giving me enough time. जैसे वो बच्चे में इतनी preoccupied हो जाती है and because of her hormonal changes, बच्चे को breastfeeding कराने में, बच्चे का ध्यान रखने में, she is not able to give enough time to her husband also. So I think here also there is a lot of gap which we are seeing that women need to take care that you have to be self-reliant and you have to be complete. जैसे बोलते हैं ना हम लोग एक multi-tasked personality है women. So we celebrated, as Dr. Anand also said, हम लोग ने Women's Day celebrate किया. Yes, I agree with you that Women's Day should be celebrated every day because we need to respect what women can do. And here मैं सब women से यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप माँ भी बन रहे हो या अगर आप एक wife है, आप एक बेटी हो या आप homemaker है या आप एक career person है, you have to balance the whole thing. और वो balance जो है ना, वो जब तुम्हारे life में आ जाएगा ना, वो balance अपना marriage भी अपने आप balance कर लेता है. So to balance that your expectations should not cross the reality. जैसे अगर मैं आप अगर expect करते हो कि हाँ मेरे को तो अमिताभ बच्चन जितना बड़ा घर चाहिए, but उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है. So you have to balance your reality and balance your expectations, and you have to balance your children along with balancing your husband. तो ये balance जब आता है ना, that is the time when women become much better. That's what I feel. Okay, thank you, Dr. Jinal. And what Dr. Jinal has mentioned, a very important point. She says that that love and affection, which is missing among the husband and wife, and especially after the delivery, and that's why the relationship is not there. The relation should be a fulfilling relationship. It has nothing to do with the physical attraction, whether the girl after the delivering become a fat or cannot give the time because of breastfeeding or because of the child. But
husband should also understand this understanding. This bonding is very, very important for a successful marriage, whether it's a marriage or remarriage. If this bonding is not there, then how the marriage is going to last. And she said that whether the cup is half full or half empty, it all depends on what you say. Although the Dr. Jinal, my view is about this is that I always feel that if the cup is half, we must think that how we can fill the cup. There is a space, we should fill up the cup. But now I know that you have to go to the clinic, so I will ask the questions to you right now. My question, it's not a question, but yes, you can, being a doctor and that to a pediatrician. In UK, USA or developed countries, it is almost compulsory that the husband is always be at the time of delivery inside the operation theater or the labor room. And he witnessed the pains, he witnessed the happiness of the child delivery, all the through, and he's involved in the entire process, which is not there in India. Do you think this is one of the reasons that the father of a child could not connect that much emotionally, which we have seen in other countries, how they are, the father, I'm talking father, although it's not like this, that they are not having divorce, they are also having lots of divorce, but at least they know how to take care, they know how the child in the night is crying, they've been trained, even the husband is trained in the hospital or the nursing homes for changing the nappies or all those things, which is lacking in India. And that's why the new generation, I'm talking of the new generation, as Dr. Rajiv Anand very clearly said, that old generation, we never even thought of it. New generation, although they are following the Western culture in all aspects, but they are lacking emotionally attachment, which is there in other countries. And in case in India also have this type of system where the husband will know how the wife is undergoing the pains of the delivery, how the happiness when the child is delivered, that happiness, the pursuit to happiness, wife is feeling, husband should also feel, because he is witnessing the entire process. What you say about this? Because I asked this question yesterday in my International Women's Day, and earlier also to a doctor, and they says, no, our custom is different and we should not adopt it. But I have seen that husband, as you rightly said, if the child is there, the husband feels that no, she is not taking care of me, she has become fat, she is not the wife has to take care of the child. Husband is not taking care. I am talking of the most cases in India, they are not taking care of the child, they are not changing the nappies and other things. So in that case, what you say about this? So, Dr. Lal, I practice in an urban setup in Mumbai where I go to Juhu, Khar. Probably I do come across more of elite class also. So I am seeing the trend is changing in educated community, where a lot of fathers, because their relationship with their wives are so good. So I'm talking of where the bonding, that the husbands insist that they want to be present in the operation theater. They will hold the woman's wife while she is delivering and while she's going through pain. They give a lot of skin to skin contact with the baby. They take paternal leave. So I think the trend in the last 5 to 7 years I am definitely seeing is changing. But yes, as you very correctly said, that this percentage is still very minor. We have still 80 to 90% of people who have not changed, where husbands don't even touch the babies. They are अपना काम कर रहे हैं, and mother वो माँ बिचारी पूरा दिन घर का भी काम कर रही है, बच्चे का भी दार कर रही है, दूध भी पिला रही है. So 90%, yes, we still have a huge struggle and huge change to come in. But I think the younger generation is getting better because education level is getting better, exposure is getting better. Social media has definitely helped us a lot, and channels like जो आप कर रहे हो काम, हम कर रहे हैं काम. So we are trying to change the mindset of people. We are trying to bring in the change that no, a father has to play an equal responsibility in taking care of the baby, whether it is changing the diaper. So मैं मेरे antenatal classes में क्या बोलती हूँ कि what fathers can do is, fathers can do the massage of the baby and give the baby a bath. Because आज तुम मसाज वाली बाई को बाहर से बुलाओगे, and in COVID we all have realized that we don't want outside people coming into the house. तुम उसका पैसा दे रहे हो, उससे अच्छा let the father bond with the baby. So I think every father should decide that I want to bond with my baby. So remove 1 hour in a day जब तुम बच्चे को नहला रहे हो और बच्चे का मालिश कर रहे हो. आज जो प्यार से वो मालिश करेगा ना, वो बाहर की कोई लेडी आके नहीं करेगी. So I think that is a good way that fathers can bond, and he can definitely contribute to the fact that he can love the mother more. Because if the mother feels appreciated and if she feels loved,
she will give more 200% to the relationship of her marriage and to her child. आज मुझे अगर प्यार ही नहीं मिल रहा है तो मैं सामने क्या दूंगी? So it's a give and take relationship. So I feel the bonding, the understanding decides how that whole journey goes through. So my request to all the mothers who have delivered and all the couples who are going to be new parents is that you have to see to it that the love and understanding is mutual, and आप अपनी responsibility share करो rather than going into that fact कि मुझे झापा रखनी है, मुझे बाई रखनी है. नहीं, why? It's your baby. तुमको क्यों बाहर वाला कोई चाहिए तुम्हारा बच्चा संभालने के लिए? You divide the responsibilities with love and happiness, and everything will go on in a very, very right way. So I think everything in life is about communication. Very important. मतलब antenatally before बच्चा आता है ना ये दुनिया में, I think it is important that आप communication करो कि कौन क्या करेगा, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका रोल क्या है. तुम मम्मी के वहां रहोगी कि ससुराल जाओगी, ओके, तुमको किस चीज में कितनी हेल्प की जरूरत है, तुम्हारा काम तुम कैसे एडजस्ट करोगी, तुम्हारा कुकिंग कौन देखेगा. सो ये सब चीजें अगर हम पहले ही अगर वो फैमिली डिसाइड करता है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होने का तो इश्यू आता ही नहीं है. So I think communication is something which lacks, okay, when couples are becoming parents. So agar healthy relation chahiye, so I feel in any relationship, whether it is marriage, remarriage, or it is parenthood, or even if it is any two people, it is friends. What is important is that you communicate with each other, and communication should be open. ऐसे बोलते हैं कि मतलब जैसे कोई लोग क्या करते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, बैठ जाएंगे, ओके, ऐसे बात नहीं करेंगे. सो डोंट गो इनटू दैट साइलेंस जोन. आप कम्युनिकेट करो व्हाट यू फील. अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आप कम्युनिकेट करो. सो आई थिंक इफ यू कम्युनिकेट वेल, things don't go wrong in a relationship. And second, always set realistic goals. Don't set unrealistic goals. जैसे कोई माँ को तुम बोलो सडनली अभी डिलीवरी के बाद तुम 100 किलो की हो गई थी, अभी तुम 50 किलो की हो जाओ, वैसे तो होने नहीं वाला है. सो यू सेट रियलिस्टिक गोल्स विच आर डुएबल. तो अगर वो होंगे ना तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लेवल सेट नहीं होते हैं, तो यू कैन अचीव इट एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट. So this is the thing. Okay, but now before you go, what are your views on advantages and disadvantages of remarriage, the pros and cons? Because we have spoken about the marriage and the because after the child or and the divorce or the widow, you have also seen some patients after the remarriage. What are their advantages and disadvantages? So to be very honest with you, Dr. Lal, I would like to share my personal experience because I have been remarried, and I think Dr. Anand is aware of it. So I have been married again 6.5 years back, and now I have 2 daughters. One is my biological daughter, one is my husband's. And I would love to say that I have an excellent, happy marriage. Now, I think what is very important in a marriage is that, जैसे second marriage है, हमको अपने रिलायबिलिटी पे वर्क करना है, that how much you rely on each other and you communicate. जैसे मैंने communication के बारे में बात किया, you communicate कि what are the expectations from each other, okay, and where you want to reach in life, and you set common goals. So I think about talking about goals, and very, very important, trusting each other. I think remarriage there are more problems because research has proved that the chances of second marriage failing is always higher than the first marriage. I think in US the statistics say that 60% of second marriage fails. So I feel it's important that if you are getting remarried, you have to sit and remove time to understand the person, to develop that trust in that relationship, okay, to have that communication, and you decide what you want. जैसे आप लिख लो क्या क्या चाहिए किसको, and you discuss it beforehand. And I have feel that in most of the marriages, what I'm seeing with my patients, that finance and children, these are the 2 main issues because of which issues are more. So अगर ये दोनों चीज आप पहले से clarify कर लेते हो कि हाँ, these are the things with children or these are the things with our finances. जैसे I have one more patient who herself was very well settled and her husband was also very well settled, and both of them had children. So they decided to sign a prenuptial agreement कि अच्छा मेरा property मेरे बच्चे को जाएगा, तेरा property तेरे बच्चे को जाएगा. So then there is no reason of conflict. So I feel that personally, you clearing as to what you want, and you clearing with your partner that you want love from each other, and when you trust each other, then remarriages can be successful. And I really urge to all the people that आप अपने relationship को work करने के लिए you have to work harder. It is not कि चलो बैठे बैठे किसी को कुछ मिलता है, right? It is an effort which goes in every day. जैसे हम एफर्ट अपने को बदलाव लाने में करते हैं, तो रिलेशनशिप को बदलाव लाने में भी करना चाहिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट कैरी द बैगेज फ्रॉम योर पास्ट मैरिज और द बैगेज फ्रॉम योर पास्ट फेलियर्स into your current marriage, and you give 100% of yourself into the marriage. And if you feel some things are not working right, you sit and talk about it, create time
and create your priorities right. That is how a marriage can be successful. Okay, thank you very much, Dr. Jinal, for giving your views. Thank you very much. I'm sure our viewers are quite enlightened about both the views about the after the marriage, first marriage or the second marriage, the delivery, what has to be done for the husband and the wife, and secondly about the remarriage. She has very well clarified that one has to choke out everything initially because of the experience what she or he got from the first marriage, and then only they should enter in the second marriage to make it successful. Otherwise, as per the data what Dr. Jinal has quoted, says chances of second marriage failure is more than the first marriage. Thank you very much, Dr. Jinal, for giving your views. Now I would like to invite my next panelist guest, and he is Mr. Siddharth Diwan. Mr. Siddharth Diwan is the vice president of one of the largest general insurance company in India as their head of data analytics insurance company. He is bachelor's in electronic engineering. He is having 18 years of work experience in the field of information technology. He lives in a nuclear family and believes in a strong family bonding. He also enjoys reading and believes in the philosophy that one should never stop learning. Welcome, Mr. Siddharth Diwan on our show. Mr. Diwan, you have heard Dr. Rajiv Anand as well as Dr. Jinal. Both have given their views. We would like to know your views because you are doing this, you are in an insurance company with your lots of information and also the advantages which you feel in the nuclear family. Although Dr. Rajiv Anand is mentioned about the joint family, the earlier families, about where all relations were together. So we would like to know your views on remarriage, pros and cons. Mr. Siddharth Diwan, please. Good morning, everyone. Good morning, sir. First of all, the insights, Dr. Anand se jo insights mile or Dr. Jinal se jo insights mile, the thoughts, what they shared, they are really amazing. They are actually eye-opening things because both are doctors in their and they actually come across a lot of such real life instances faced. मतलब actually दोनों doctors का first hand experience है life में. They come across a lot of people who are going through either remarriage or a broken marriage, and the kind of insights they have shared is amazing. About me, yes, I have been in information technology and I have been lucky enough to travel across the world because my previous company से मेरे को बाहर projects में जाने का मौका मिलता था, and I stayed in a lot of European countries. The current trend, Dr. Rajiv Anand ने जैसे बताया, आज एक trend है और it's an alarming trend जहाँ marriages are breaking down very fast. Within first 5 years or first 7 years, बहुत सारी शादियां टूट रही हैं. In whatever I have seen across the world, this is not only in India. ये European countries में, North American countries में भी हो रहा है. In fact, मैं स्विट्जरलैंड में था और मैंने वहाँ पे किसी वहीं का लोकल कंसल्टेंट से जब मैं बात कर रहा था, he was my colleague there. He told me Switzerland में, अभी I don't know how far these numbers are true. He told me Switzerland में the rate of divorce is 50%. So 50%, I mean, that number was very high to me. I did not believe it. But if I look back and what I see today, the numbers are really, really very high. Why are these marriages broken? इसके बहुत सारे reasons हैं. इसका एक reason नहीं है. I think इसका आज ये generation जो हमारी generation है, हमारी generation में the tolerance level of people, the understanding level of people, the expectation level of people. And when I say people, I am obviously referring to husband and wife. आज एक marriage में the kind of understanding हमारे parents और हमारे grandparents या हमारे चाचा चाचियों में होते थे, वो level of understanding, वो level of tolerance, वो level of expectations नहीं थे उन जमाने में जितने आज हैं. आज लोग आज couples एक thumb rule के साथ आते हैं. This is my job, this is my partner's job. Husband एक pre-level notion लेके आता है कि भैया मैं as a husband यही करूंगा, ये मेरी duty है, और wife के पास अपनी एक list होती है कि these are the roles of wife in a marriage. दोनों एक preconceived notion के साथ marriage में आते हैं कि what a husband should be doing, what a marriage should be doing. I think it will not work. Everybody's circumstances are different, everybody's nature is different, everybody's work life में जो pressure आज की तारीख में, another problem, both the couples today, in most of the cases, I'm saying in most of the cases,
both the couples are working, as आज सब में होता है कि हस्बैंड भी जॉब कर रहा होता है, वाइफ भी जॉब कर रही होती है, अदर देन आपके घर का, आपके वर्क लाइफ में जो प्रेशर आप घर पे लेके आते हो, एंड इट इज नॉट दैट आप लेके आना चाहते हो, वो एक आ जाता है। आजकल का वर्क एनवायरनमेंट इतना डिमांडिंग है, इतना कॉम्पिटिटिव है कि वर्क का प्रेशर आपकी फैमिली लाइफ में आना, आई थिंक इज, जितना आप बोल लो कि हम घर आएंगे, हम स्विच ऑफ कर देंगे अपने काम की लाइफ को, वो पॉसिबल नहीं है आज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इफ यू आर वर्किंग फॉर इनफैक्ट आपका खुद का बिजनेस हो या आप कॉर्पोरेट लाइफ में, आप कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हो, आपका वर्क लाइफ इतना डिमांडिंग है और इतना चैलेंजिंग है कि वो प्रेशर आप घर पे लेके ही आते हो। तो प्रॉब्लम इज दोनों अपना अपना वर्क प्रेशर भी घर पे लेके आ रहे हैं एंड स्ट्रेस घर पे लेके आ रहे हैं। द प्रॉब्लम इज, अगर हस्बैंड लेके आ रहा है वो, then wife should actually take a part where she needs to take a back seat and handle or help the husband handle that pressure. Similarly, husband also should be equally supportive and understanding कि अगर wife अपने personal, अपने ऑफिस के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स लेके घर पे आ रही है, कोई स्ट्रेस है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, कलीग्स के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है या टारगेट्स नहीं मीट कर पा रही है, अगर वो अपने problems घर पे लेके आ रही है, the husband also needs to be equally supportive. What he expects his wife to be supportive. So both of them actually need to support each other when the stress of your work life comes into your life. And I think अगर आप rule book लेके चलोगे कि ये मेरा जॉब है, ये मेरा जॉब है, that will never work. I'll give you an example. मेरे ऑफिस में एक couple, husband works in my office. They had a full-time wife, full-time nanny to take care of the child. Generally आप देखोगे तो it is taken for granted कि भैया अगर बच्चे को संभालना है तो वाइफ ही संभालेगी या औरत ही संभालेगी. I think there is no rule. In our case, जब तक husband and wife could not solve the problem of the nanny or who will take care of the child, जब हम दोनों को ऑफिस आना है, my office colleague gets his daughter to the office every day. उसने अरेंजमेंट किया हुआ, अपने बॉसेस से बात किया हुआ है, एंड his daughter is taken care of in the office for a good 8-9 hours ये जब तक ऑफिस में. So I think that kind of an understanding level कि अगर क्राइसिस आ जाता है कि हमारी मेड नहीं है, बच्चे को कौन संभालेगा, everybody is not fortunate enough कि ग्रैंडपेरेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, या फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली में है कि कोई बच्चे को सपोर्ट हेल्प कर लेगा या संभाल लेगा when husband and wife are above. So if the crisis come, there should never be any rule book या कोई thumb rule कि भैया वाइफ ही संभालेगी या वाइफ की प्रॉब्लम है बच्चे को संभालने की, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ. दोनों में से जो ले सकता है, जो कर सकता है, वो कर ले. So what I'm trying to say is अंडरस्टैंडिंग, एंड ये ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आ जाए या डे टू डे लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाए, बोथ हैव एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट. आज वो नहीं है. आज आई थिंक द एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ द पार्टनर्स इज वेरी वेरी हाई कि एज आई थिंक डॉक्टर ज़ीनल मेंशन कि वाइफ की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हस्बैंड और हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वाइफ वो इतनी ज्यादा है. जितनी आप एक्सपेक्टेशंस कम रखो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, टॉलरेंस लेवल अपना बढ़ाओ, that is the key to marriage. And external factors, as I think Dr. Anand said, external factors, आपके फ्रेंड्स आपको क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके मदर इन लॉ या आपको फादर इन लॉ या आपकी मदर या आपके फादर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वो अगर हस्बैंड एंड वाइफ जितना इस चीज को अपने मैरिड लाइफ से बाहर रख ले, आई थिंक दैट इज द की. बिकॉज इफ यू रीड, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच एक्चुअली, आप हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी भी होगी, देयर बॉन्डिंग अच्छी भी होगी, बट ये जो एक्सटर्नल लोग जो फीड करते हैं ना आपके दिमाग में, दैट एक्चुअली अच्छों का दिमाग उससे खराब हो जाता है, एंड इट एक्चुअली अच्छे खासे फैमिली को वो खराब कर सकता है. सो जितना एम्फेसिस मैंने अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस लेवल पे दिया, उतना अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स का सुनना बंद कर दो, या you try to solve your problems on your own rather than going and taking your family problems to your friends and your parents कि भैया ये हो गया, क्या करना चाहिए. I think that should be a strictly no in your married life. You should talk it to your spouse कि क्या हमको, how do we solve it. If दो एग्री करते हैं, then दोनों साथ में जाएं किसी से बात करने के लिए. ये नहीं कि वाइफ अलग जा रही है, हस्बैंड अलग जा रहा है, वो अलग कुछ सुन के आएगा, बिकॉज इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत होते हैं and they really don't know the ground reality, and
भड़काने वाले, नॉट राइट वर्ड, बट आपके कान भरने वाले लोग भी बहुत होते हैं. उसको आप जितना अपने लाइफ से बाहर रखो उतना बेटर है. अनदर रीजन व्हाट आई फील, आज जो लोग जो सेपरेशन जो ज्यादा हो रहे हैं ना, लोगों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दोनों में इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा हो गई है ना कि दे डोंट थिंक टू मच. पहले वो नहीं था. तो पहले आई थिंक एक जनरेशन पहले व्हेन पीपल वर गोइंग थ्रू अ रफ पैच या प्रॉब्लम्स आती थी, उनके पास उतनी ऑप्शंस नहीं थे टू मूव आउट. आज के जमाने में वो ऑप्शंस हैं. पेरेंट्स आर वेलकमिंग टू टेक देयर चिल्ड्रन बैक. दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक एरिया. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी दोनों पार्टनर्स में आ जाती है, तो आई कैन मैनेज ऑन माय ओन, आई डोंट नीड हिम और आई डोंट नीड हर. दैट इशू वाज आल्सो स्टार्टेड कमिंग इन, जो पहले नहीं होता था. थर्ड थिंग, लोगों को लग गया है कि आज की तारीख में टैबू नहीं है, तो मैं अगर सेपरेट हो भी जाता हूँ या मेरा डिवोर्स हो भी जाता है, इट्स नॉट अ टैबू. ये बहुत बार हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, तो मेरे साथ भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, आई कैन लिव हैप्पीली. सो ये आज ये जो ट्रेंड है ना, आई थिंक जो लोग, सोशल मीडिया आल्सो एक्चुअली प्लेज अ रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, बिकॉज people come to know कि भैया लोग सर्वाइव कर रहे हैं, लोग सर्वाइव कर सकते हैं, people are happy. So even if you are separating and you are actually going through something else, आप बाहर सोशल मीडिया में कुछ और ही दिखाते हो. This is how I am very happy, I am leading a fantastic life. So people get that impression कि भैया he's divorced, he's separated. मैं उसको देख के I'm thinking यार ये तो he's very happy, so I will also be happy. So I think social media को भी, you should know how to utilize your social media to your advantages and disadvantages. So many factors I feel are in today's world responsible for this alarming or rate in which our separation जो हो रहे हैं, इसके reasons बहुत सारे हैं, and I think people should be aware of what is good for you, what is not, whom you should consult, whom you should not. Those are the things. Okay, thank you, Mr. Siddharth Diwan, for giving your views. And basically, Mr. Diwan has mentioned why the separations are taking place, why the divorce is taking place, the tolerance. He says the first is the tolerance and expectations, and the external factors like listening from friends or parents-in-laws. All those factors, if we keep separately and discuss mutually, the husband and wife, then these types of mishap or divorce will not take place. That is one of the reason, according to Mr. Siddharth, is the reason. Now my question, because Mr. Siddharth has also left for a meeting. Mr. Siddharth, don't you think the main reason is the upbringing? Whether the boy or the girl, if the upbringing of a child is perfect, if the child has seen the parents, the grandparents of the family, how they behave with each other, if the same upbringing was given to the boy and similar type of upbringing, if you recall, I'm sure you will not, but Dr. Rajiv Anand knows that initially at our time or before our time, they used to see the 7 generations of a family before the marriage. Those who are not shadi.com, but at that time, this pundits and those fellows, because they just see, is there anyone has gone out, has done something wrong, or all those things. So don't you think the upbringing is very important? Because today, as you are talking about nuclear family, today what you are doing, and your child is always a very, very keen observer. You need not to teach. And if the child is observing today, and if he or she sees the discord between parents, definitely in future, when he or she will grow up, the same thing will happen. What do you say about this, Mr. Siddharth Diwan? Upbringing definitely plays a very, very important role. I would say it plays a major role in your life, and it's not only in your married life, in how you adapt to any situation, how do you deal with any situation, whether it's work, whether it is office, whether it's friends, whether it's your आपको event पे हो, how you actually react to situations, how you behave, how you talk, how you respect each other. Those qualities definitely come handy when you've got a very good upbringing, because obviously जो आपने देखा है अपने बचपन से, वही आप you think that this is the right way, पर आपके parents ने वो किया है, and that is how you do it. But marriage में I think upbringing से ज़्यादा ना extra, there are many other factors, at least I feel so, that
upbringing definitely will take you to a certain level, or it will help you to a certain level in your marriage for your marriage to succeed. But there are other things also which they don't have a direct connection with your upbringing. As I said, you know, आपके friends आपको क्या बोलते हैं, या आपके आप अपने how are you, and suppose आप अपना ऑफिस का, जैसा I told you, स्ट्रेस घर पे लेके आ रहे हो and you are not able to behave in the way because of the stress, you are not yourself, you are actually behaving in a certain manner, and if your spouse doesn't accept you on that day and doesn't help you on that day, I think उसका मेरे को लगता है डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं अपब्रिंगिंग से. The external factors like upbringing, आप देख रहे हो, like example जो मैंने सोशल मीडिया में दिया, people are separating and they are showing that I am very happy, वो इन्फ्लुएंस कर देता है आपको, तो उसका भी डायरेक्टली मेरे को लगता नहीं है कोई अपब्रिंगिंग से कोई. आई अंडरस्टैंड, बट अगर अपब्रिंगिंग आपकी अच्छी है तो वो इन्फ्लुएंस भी पेरेंट्स सिखाते हैं कि बाहर वालों के बातों में कम आओ, अपनी सोचो, और वो वैल्यूज देते हैं, जो वैल्यूज जो पहले आती थी वो वैल्यूज आज लैक हो रही हैं. और one of the reason is nuclear family, but I know that your time limitation is there for you have to leave, so thank you very much. Definitely we will have a next time when we will keep some program on nuclear family. Definitely we would like to take you and discuss the advantage and disadvantage of the nuclear family. Thank you very much, Mr. Siddharth Diwan, for giving your views. And now I would like to invite my next panelist guest, and she is Miss Sonal D. Gada. Miss Sonal is a yoga teacher at Mumbai. सोनल जी, आपने हमारे अर्लियर पैनलिस्ट डॉक्टर राजीव आनंद, डॉक्टर जीनल एंड मिस्टर सिद्धार्थ दीवान को सुना. आप के विचार हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं रीमैरिज के फायदे और नुकसान के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में. मिस सोनल गाडा प्लीज. पहले तो आई थैंक गॉड आई गॉट गुड लाइफ पार्टनर. और रीमैरिज के बारे में बोलना चाहूँगी कि बेनिफिट है अगर अपन एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के एक कप चाय पी सकते हैं, क्योंकि अकेलापन बहुत कठिन है और अगले की आगे की लाइफ निकालनी भी बहुत कठिन है. एक कोई लाइफ पार्टनर तो चाहिए ही अपन को. मैं अकेली थी. मैंने मेरी ग्रैंडमदर और मेरे फादर की सेवा की. बाद में मेरे पेरेंट्स को, मतलब फादर और ग्रैंडमदर को बहुत टेंशन हुआ कि अकेली कैसे रहेगी हमारे बाद, इसने तो हमारी बहुत सेवा की है. तो फिर गॉड ने देखा तो हमारा एक कजिन है, उसके फ्रेंड थ्रू पहचान हुई हस्बैंड की, और फिर साथ में मिले, बात की, एक दूसरे को पहचाना. पहले तो मैं भी बहुत डर रही थी कि रीमैरिज, मेरे भी रीमैरिज है, कि मुझे रीमैरिज तो करने ही नहीं है, कुछ भी हो मैं अकेली रहूंगी, जिंदगी निकाल लूंगी. और फिर मैंने उनको पहचाना, हुआ कि अच्छे भी होते हैं इंसान, सब इंसान बुरे नहीं होते हैं दुनिया में, अच्छे इंसान भी होते हैं और बुरे इंसान भी होते हैं. अपन को उसको समझना चाहिए. और फिर हम साथ में मैरिज की, साथ में घूमे फिरे, गोवा गए हनीमून पे. वो जैन है, अच्छी जैन है वो. ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी केयरिंग एंड वेरी पॉजिटिव माइंड. एंड वो जैन है तो मैं जैन धर्म में भी फॉलो करती हूँ. फैमिली में सब में जुल मिल के रहती हूँ. और मैंने शर्त रखी थी कि अगर तब मेरे फादर थे कि आप मेरे फ्लैट में रहोगे तो मैं शादी करूँगी, नहीं तो मुझे नहीं करनी, क्योंकि मेरे फादर थे 78 ईयर्स के, तो उनकी तो मुझे सेवा करनी थी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट थी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बड़ा किया. सब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, मेरे मदर नहीं थी बचपन में. तो फिर उन्होंने शर्त मान ली कि अच्छा, उनका भी फ्लैट है मीरा रोड में और ही इज प्रॉपर्टी डीलर्स. तो शर्त मान ली और सेट हो गए मेरे घर पे. बस अभी शादी को 8 इयर्स कंप्लीटेड, और अभी 18 जनवरी को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी गई. हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे की मुश्किलें हल करते हैं,
साथ देते हैं। और क्या बोलूं, बस हैप्पी मैरिड लाइफ। जी, बहुत बात बताई आपने, बहुत बढ़िया बात बताई। सो व्हाट मिस सोनल गाडा सेज दैट द remarriage is also good if it is done in a proper way. She says that she also got remarried and she found her husband quite accommodating, quite positive, loving. So it all depends. So to say that the remarriage is not a good thing or it is always a failure, it's not like this. If the understanding is proper, and because she has knows the earlier things, so she has put some conditions with her husband. Condition means that she has to stay in the same flat where the father was there for the time being till the father was alive and the husband accommodated. So if that type of feelings are there, according to Ms. Sonal, the remarriage is beneficial. One should, if because of certain reasons, if the marriage breaks, we are not analyzing the reasons for what marriage breaks, but if marriage breaks, then remarriage can definitely help for at least a single lady what she will do in the life. If we, why not to go for remarriage? Thank you very much, Ms. Sonal Gada. I will come back to you in the next round. Next, now I would like to go back to Dr. Rajiv Anand. Dr. Rajiv Anand, you said that you are going to speak on the second round about the remarriage thing. So Yeah. please go ahead for that. पहली बात, इन दोनों के विचार सुनकर वाकई में खुशी हुई और हम तहे दिल से सोनल की भी प्रशंसा करना चाहेंगे, जिसने बेहिचक होकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया हम सबके सामने, क्योंकि वाकई में प्रैक्टिकल लेवल पर ये कठिनाई होती है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की उतार चढ़ाव की आंतरिक कहानी को सबके सामने शेयर करने की हिम्मत रखे। बहुत कम लोग होते हैं। सोनल उस प्रशंसा के पात्र हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी 8वीं मैरिज एनिवर्सरी पूरी हुई और 8 साल से आप दोनों जुड़े हैं, और वो भी जब सेकंड मैरिज की है उस समय शायद आप अर्ली 40s में थे और अब आप ऑलमोस्ट नियरिंग 50 के आसपास हैं या क्रॉस कर चुके हैं। और उम्र के इस दौर में आपने अपने अनुभवों को, अपनी समझ को, अपनी सीख को सही दिशा में इन्वेस्ट किया कि आपके जीवन साथी, बावजूद इसके कि जैसा कि बहुत सारे लोग धर्म के आधार पर विभिन्नता को ज्यादा महत्व देते हैं कि हम ये हैं, तुम जैन हो, हम वैष्णव हैं, सो ऑन सो फोर्थ, मगर आपने अपनी दोनों की पहचान को मिलाकर एक परिवार बनाया और 8 साल से जुड़े हुए हैं। इससे बड़ा रोल मॉडल क्या हो सकता है कि रीमैरिज में भी लोग सुख से रह सकते हैं अगर उन्हीं सिद्धांतों को यूज करें जो री वर्ड में री हटा दिया जाए, जो मैरिज के किसी भी रिश्ते के, किसी भी प्राइमरी रिश्ते के, किसी भी रिश्ते की बहुत बेसिक जरूरतें होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोनल की तरह डॉक्टर जिनल ने भी बताया कि उनकी भी रीमैरिज है और वो भी प्रशंसा की और धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भी अपनी व्यक्तिगत लाइफ के कुछ हिस्से बांटे कि वो बहुत खुश हैं रीमैरिज करके 8 साल से। तो वापस ये सवाल आता है कि रीमैरिज अगर डरते हैं, जैसा कि सिद्धार्थ दीवान ने बताया, काफी लोग, या जैसा सोनल ने बताया कि पहले वो डरती थी कि मैं रीमैरिज तो बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं अकेली रह लूंगी, जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि ये गलतफहमी बहुत सारे लोगों को है कि अगर हमारे पास सुविधा है, आर्थिक सुविधा है, या हमारे पास एसेट्स हैं, या एफडी है, या हमारी रनिंग इनकम है, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो हम अकेले रह लेंगे। तो मैं इस बात के लिए विशेष तौर पर जोर देकर कहना चाह रहा हूं कि जीवन का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रह लेना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर लेना, कपड़े पहन लेना, कभी पिक्चर चले जाना, हॉल चले जाना अकेले, कभी अकेले घूमने चले जाना। जीवन का मतलब सांस लेना और खाना खाना, सोना, आराम करना, सिर्फ ये नहीं है। जीवन का सही मतलब है जब हम जीवन के हर क्षण को, जीवन के हर पल को, जीवन में होने वाले हर घटनाओं को, जीवन में होने वाले हर अनुभव को हम किसी के साथ आंतरिक तौर पर शेयर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाए, किसी एक व्यक्ति के साथ जिससे हमें शेयर करने में कोई हिचक, कोई हमारे मन में रुकावट ना हो।
दोबारा सोचना ना पड़े कि ये बात इनसे कहें या ना कहें। वो शेयर कर पाने की क्षमता और शेयर कर पाने की स्वतंत्रता जितनी ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होगी हमें, हम उतने जीवन से भरे होंगे। और जितना हम शेयर नहीं कर पाएंगे, संकुचित रहेंगे यानी कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, हम रोकेंगे यानी कि बंधेंगे यानी बंधे रहेंगे यानी घुटते रहेंगे, उतना हम जीवन से भी उतना लाइफलेस हो जाएंगे। तो जो बहुत सारी लड़कियों को, चाहे वो 20s में है चाहे वो 30s में है, एक बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं अपनी सैलरी से, या एक्स अमाउंट ऑफ मनी हमारे फादर ने हमको बैंक में दिया हुआ है, या हमारे मदर फादर हमको संभाल लेंगे, उन सब के लिए एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीनिंगफुल संदेश ये है कि आप जी तो लेंगे, सांस भी ले लेंगे, खाना भी खा लेंगे, टीवी भी देख लेंगे, सो भी लेंगे, कपड़े भी पहन लेंगे, लेकिन आप लाइफलेस होंगे। क्योंकि आप अपने जीवन की हर घटना को, हर अनुभव को, हर उतार चढ़ाव को, हर दुख सुख को किसी के साथ जब तक शेयर नहीं कर पाएंगे। और वो शेयर करना, वो कॉफी हाउस में बैठकर आधे घंटे के लिए एडॉक बेसिस पर नहीं हुआ कि आज इसके साथ शेयर है, कल उसके साथ शेयर है, परसों उसके साथ शेयर है, और हमको याद भी नहीं है कि आज 9 तारीख है तो हमने 2 तारीख को किसके साथ शेयर किया था। अगर ये स्थिति आ जाएगी कि हमें याद नहीं है कि 27 फरवरी को हमने किसके साथ डिनर किया था और 18 फरवरी को हमने किसके साथ लंच किया था, हमें याद ही नहीं है, किसी के साथ किया था, तो फिर वो जीवन जीवन नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। हर लड़की से अगर उससे दिल से पूछा जाए, और हर लड़की जो दिल का संबंध बनाना चाहती थी और बनाना चाहती है, और हर वो लड़की जिसको माँ बाप से और चीजों से कहीं ज्यादा अच्छे संस्कार की गिफ्ट मिली है, तो हर लड़की से अगर पूछा जाए सच्चे मन से कहो, तो कोई लड़की नहीं चाहती कि उसे दूसरी शादी करनी पड़े। कोई लड़की नहीं चाहती कि उसे दूसरे इंसान के गले में, दूसरे इंसान के गले में जयमाला डालनी पड़े। कोई लड़की नहीं चाहती कि उसे दूसरे इंसान को आई लव यू बोलना पड़े। कोई लड़की नहीं चाहती। लेकिन फिर भी जैसा हम लोग शुरू से चर्चा के वक्त से सुनते आ रहे हैं, चाहे स्विट्जरलैंड में 50% डाइवोर्स रेट है, क्या इंडिया में शादी.com विवाह.com वाले बताते हैं कि 12% के लोग आजकल सेकंड मैरिज में आ रहे हैं। जैसा हमारा अनुभव रहा है कि 5 साल पूरे नहीं कर पाती 70% मैरिजेज। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिंपल ये है कि हम जब रीमैरिज की तरफ आशा लगा के बैठे हैं कि कोई राजकुमार आएगा दूसरी मैरिज में और हमको रानी बना के, राजकुमारी बना के हमें जीवन भर सुखी रखेगा, तो ये सिर्फ सपनों की, ये सिर्फ कहानियों की बातें हैं। प्रैक्टिकल उसमें नहीं होता। हमें अपना बेस्ट देना है, चाहे सेकंड में चाहे फर्स्ट में। और किसी वजह से अगर हम फर्स्ट में नहीं दे पाए हैं, या हमको फर्स्ट में हमारा बेस्ट देना नहीं सिखाया गया है, तो हमें सेकंड मैरिज में जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं सिखाया गया है, वो भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। क्या बतौर पेरेंट्स के हमारा फर्ज सिर्फ शादी कर देना है, बैंड बाजा बारात कर देना है, समधी देख लेना है, लड़का देख लेना है, पार्टी कर देना है और लड़की को छोड़ देना है, अब तुम संभालो जिंदगी अपनी? क्या हमारा फर्ज ये नहीं है कुछ संस्कार बताना लड़की को भी और लड़के को भी? सोनल, आप अपने या तो माइक को म्यूट कर दीजिए या आप जैसे चाहें, अगर आपको बात करनी है तो म्यूट कर दीजिए। तो उतनी ही हमें लड़की को भी संस्कार देने हैं और लड़कों को भी देने हैं, दोनों को बराबर से, कि अगर आप शादी के संबंध में जा रहे हैं तो क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कितनी आपको लिसनिंग होनी है, कितनी आपको एक्सेप्टेंस होनी है, कितनी आपको अप्रिशिएट करना है, कितना आपको अकोमोडेट करना है, कितना आपको एडजस्ट करना है, कितना आपको फॉरगिव करना है, कितनी आपको अपनी शेयरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, किस तरीके से आपको अपने गुण को ज्यादा से ज्यादा उस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है, कितना आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके अपने पार्टनर को महसूस कराना है कि तुम मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मुझे मालूम है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे साथ, तुम्हारे मार्गदर्शन में, तुम्हारे प्यार में अपने आप को लेस एंड लेस इम्परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं और तुम दो नहीं है, मैं और तुम अपोजिशन पार्टी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी नहीं है जो एक दूसरे को डिसाइड करेंगे। मैं और तुम एक हैं, एक हैं। हम अनेक थे शादी के पहले, अनेक मतलब अनेक, एक नहीं थे, दो थे, अनेक थे, मगर शादी के बाद हम एक हो गए हैं और हम एक रहेंगे जीवन भर।
जीवन की आखिरी सांस तक हम एक रहेंगे। वो कमिटमेंट, वो वायदा, वो अंदर से मन से उस बात का संकल्प, वो लड़कों को भी लड़कियों को हर दिन बताने का जरूरत है कि वो हर तरीके से बताएं कि आई केयर फॉर यू एंड आई लव यू and I would continue caring for you, continue loving you whole of my life till my last breath, irrespective of you may have this and you may have that, you may have 5 kg more weight, or you may be thin, or you may be tall, or you may be less. Yes, you are my wife. I would commit to you. हम जब पहली शादी में इन अल्फाबेट को, रिश्तों की अल्फाबेट को, ABCD को जो हम नहीं सीखते हैं, तो हम पहली शादी को अपने सामने खत्म करके दूसरी शादी में जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी शादी सफल हो जाएगी। कैसे होगी? तो अगर हम आज के टॉपिक पे वापस जाएं तो रीमैरिज को सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी भी दोनों पार्टनर की है। जिन दोनों पार्टनर ने शादी की, और हमें खुशी है, जैसा सोनल ने बिना किसी प्रश्न पूछे हुए इस बात को माना कि वो बहुत खुश हैं 8 साल से, और उनके पति भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं और दोनों में बहुत अच्छा प्रेम है। तो दूसरी शादी को सफल बनेगी या असफल होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी दोनों पार्टनर की है। हम ये कह दें कि हमारी किस्मत खराब थी कि हमें दूसरा भी ऐसा ही मिला। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने 4 मैरिज की हैं, चारों मैरिज टूटी हैं। चलिए मान लीजिए कि चारों मैरिजेज में उनको किस्मत खराब थी, उनको चारों मैरिज पार्टनर सही नहीं मिले, लेकिन चारों मैरिजेज में कॉमन क्या था? कॉमन वो खुद थे। अगर उन्होंने अपने रोल को सही निभाया होता तो शायद चौथी नहीं करनी पड़ती, तीसरी नहीं करनी पड़ती, दूसरी नहीं करनी पड़ती, पहली में ही उनको संतुष्टि मिलती। तो सेकंड मैरिज एक विकल्प जरूर तैयार हो रहा है पूरी दुनिया में, और उसके प्रति अब उतनी स्टिग्मा की है, उतनी अवहेलना की है, उतनी अजीब आलोचना की उतनी जगह नहीं है जितना 40-50 साल पहले होती थी। मगर वो विकल्प सिर्फ उन परिस्थितियों में है जहां कोई दुर्घटना हुई हो। वो विकल्प इसलिए नहीं है कि हम अपना घर छोड़ के हम पड़ोसी के घर में जाके रहने लगे। हमारे पड़ोसी का घर सपोर्ट के लिए जो हमारे घर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो। हमारे माँ बाप का घर उस समय है जो हमारे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन जाके रह सकते हैं। मगर हमारे माँ बाप का घर एक विकल्प नहीं है कि अपना घर छोड़ के उनके घर ही जाके रहेंगे 6 महीने साल भर। बहुत सारी लड़कियां हस्बैंड से झगड़ा करके 3-3 महीने 6-6 महीने जाके माँ के पास रहती हैं। बहुत सारी लड़कियां अपना फ्लैट छोड़कर दूसरे फ्लैट में जाके रहती हैं, रेंट पर ले लेती हैं। बहुत सारी लड़कियां अपने हस्बैंड को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं कि तुम कहीं और जाके रहो, मैं इस घर में रहूंगी। हस्बैंड रेंट पर कहीं रहते हैं। तो ये सब भ्रांति, ये सब गलतफहमी, ये सब गलत बातें, ये सब गलत सोच कहाँ से आ रही है, उन बातों का जिक्र करना यहाँ इस फोरम पर बहुत जरूरी है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा दिमाग हमारे रिश्तों को ड्राइव कर रहा है, हमारा दिमाग जो हमारे रिश्तों को डोमिनेट करना चाहता है, हमारा दिमाग जो परफेक्ट ड्राइवर नहीं है, क्योंकि रिश्तों का ड्राइवर तो हमारा दिल था। अगर आपने कोई बात मुझसे कही मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर आप मेरे अपने, तो मैं उसको इग्नोर करूंगा, मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा, मैं उसको तुरंत जवाब नहीं दूंगा, मैं तुरंत झगड़ा नहीं करूंगा। मैं समय दूंगा कि आपको धीरे धीरे समय के साथ पता चले कि वो बात अच्छी नहीं लगी है। और अगर आप दोबारा भी अगर वही गलती करेंगे तो शायद मैं कुछ समय के बाद आपको याद होगा कि देखो वो बात नहीं थी। लेकिन जिस समय आप कह रहे हैं, मैं उस समय ही अपने पूरे आक्रोश के साथ आक्रामक रूप से आपके ऊपर अटैक करूंगा और आपके खानदान को और आपके माँ बाप को गालियां देना शुरू करूंगा और आपको महसूस करूंगा कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तो वहां हम रिश्तों को सही तरीके से उसका पोषण नहीं कर रहे हैं, उसको नरिश नहीं कर रहे हैं। तो कई बार लोग दूसरी शादी कर लेते हैं बिना पूरी तैयारी किए हुए, और दूसरी शादी को भी उसी तरह टूटने देते हैं जितनी पहली शादी में। तो सवाल रीमैरिज में रिस्क और बेनिफिट का डायरेक्ट नहीं है, हम क्या लेकर जाते हैं किसी रिश्ते में, हमें उस अनुपात में उस रिश्ते में वापस मिलेगा। हम क्या देते हैं दूसरे इंसान को? सम्मान देते हैं, अपनापन देते हैं, स्नेह देते हैं, लगाव देते हैं, केयर देते हैं, उस प्रपोर्शन में मिलेगा। एक बात जो शायद उतनी स्पष्टता से नहीं समझी जाती, हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि हमें प्यार मिले, हमें प्यार मिले, हमें सम्मान मिले, हमको लगाव मिले, हमको अटैचमेंट मिले, हमें सिक्योरिटी मिले, जरूर मिले, और अच्छा है मिले, और अच्छा है ज्यादा से ज्यादा मिले, हर लड़की को मिले, लड़के को मिले। लेकिन हमें जब मिलेगा जो हम ज्यादा से ज्यादा देंगे। एक छोटे सा उदाहरण सब लोगों ने सुना है
और फिर से सब लोग उस बात को अपने मन में उसको रिवाइव कर लेंगे। कोई बैंक हमको उतना इंटरेस्ट देगा जितना हमने उसमें डिपॉजिट कराया है। अगर हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट कराया है तो बैंक साल पीछे हम ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का साल भर के पीछे, यानी 500 रुपए को बारे में अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको 40-42 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा महीने का। मगर हम तो चाहते हैं कि हमको 40-42 हजार रुपए महीने का इंटरेस्ट चाहिए, और हम बैंक से जाके झगड़ा करेंगे तो बैंक क्या बोलेगा, हम आपको 40-42 हजार रुपए का इंटरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उस अनुपात में आपको उतना ही डिपॉजिट यहाँ रखना पड़ेगा। आपको 40-50 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, यानी आपको 5 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराना पड़ेगा। बैंक बोलेगा मैं आपका भाई नहीं, मैं आपका फादर नहीं, भले ही आप मेरे बेटे हैं, भले ही आप मेरे भाई हैं, मगर जो लॉ है, जो कानून है, जो भारत सरकार का है, या जो विश्व के जो भी पावर उनका है, हम कितना देंगे उस अनुपात में हमें मिलेगा। और देने पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, काउंटिंग करेंगे, हम इतना देंगे जितना हमारी मर्जी आएगी, जितना ये इंसान डिजर्व करता है, हम दिल खोल के नहीं देंगे, फिर तो आपको पहली मैरिज क्या दूसरी में भी जाना पड़ेगा, दूसरी से निकलकर तीसरी में भी जाना पड़ेगा, और आप अपनी किस्मत को ही कोसते रहेंगे, गाने ही गाते रहेंगे, जो बहुत सारे पिक्चर में आते थे ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, या ये क्या हुआ, ये कब हुआ, या कोई हमदम ना मिला, कोई हमारा ना हुआ, हम किसी के ना रहे। आप दुख भरे गाने गाते रह जाएंगे, और आपको कोई सच्चा साथी आपकी आंख खोलने को, आपको जगाने को नहीं आएगा कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं। मैं बिल्कुल अपनी लाइन की, अपने प्रोफेशन की कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाह रहा हूं, विवाह जैसे संबंध में जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी, सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए। हो सके तो शादी के पहले ज्यादा से ज्यादा, और नहीं हो सके तो शादी के तुरंत बाद ज्यादा से ज्यादा। और वो ज्ञान, वो जानकारी, वो बेसिक्स, वो फंडामेंटल, वो लैंग्वेज ऑफ रिलेशनशिप, आप उन लोगों से जानिए जो उस चीज के एक्सपर्ट है। उन लोगों से नहीं जो उन्होंने टीवी में कोई सीरियल देखा है, जिन्होंने एक कहानी सुनी है, या मेरा दिल ये कहता है बेटी मेरी तेरी तकलीफ देखकर मुझे आंसू आते हैं, या किसी ऑफिस की फ्रेंड ने किसी को कह दिया कि हस्बैंड को सीधा करने का ये तरीका है। उनसे नहीं, उनसे जानिए जो सब्जेक्ट पर सही ज्ञान, सही नॉलेज रखते हैं। आज की दुनिया में अगर उस ज्ञान के अभाव में आपकी मैरिज टूटती है तो दुख की बात है। अगर आपको रीमैरिज करनी पड़ती है, बहुत दुख की बात है। रीमैरिज के बाद भी आप दुखी हैं, सुखी नहीं है, जैसे कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि सोनल बहुत खुश है, जनरल बहुत खुश है, तो हमारा यू मेड माई डे। अगर उसके बाद आप सुखी हो, और अगर आप उसके बाद कोई इंसान ऐसे हैं जो रीमैरिज के बाद भी सुखी नहीं है, तो हमें भी दुख होता है। तो आज के समय में इसका मतलब है कि आपने अपने रिश्ते को उतना महत्व नहीं दिया है कि आप किसी दूसरे को बुला के, किसी दूसरे से कंसल्ट करते, किसी एक्सपर्ट से आप राय लेते, और वो एक्सपर्ट आपको आपका सर हिला के बताता कि देखो यहाँ तुम सही नहीं कर रहे हो, यहाँ तुम्हारी अप्रोच गलत है, यहाँ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन गलत है, यहाँ तुम्हें इस मेथड से अप्रोच करना है। जिंदगी है, 60 साल और जीना है, 50 साल और जीना है, मैरिज है, लोकल ट्रेन नहीं है, छोड़ देंगे दूसरी पकड़ लेंगे। मैरिज है, मैरिज का रिश्ता है, ओला उबर नहीं है कि दूसरी मंगा लेंगे, कैंसिल कर देंगे। मैरिज है, अगर आपने मैरिज के रिश्ते की सही वैल्यू समझी है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा करेंगे जो आपकी समझ में है, और जहां आपकी समझ और आपका अनुभव कम पड़ेगा वहां उन लोगों से संपर्क करेंगे, सलाह लेंगे जिनको आप विश्वास कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे प्रोफेशनल्स बहुत हैं, ऐसे काउंसलर्स बहुत हैं, साइकियाट्रिस्ट बहुत हैं, मैरिज काउंसलर बहुत हैं। क्यों अपनी 50 साल की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं? क्यों दूसरी, तीसरी, चौथी मैरिज में जाते हैं? क्यों डाइवोर्स तक जाते हैं? बैक टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर राजीव आनंद फॉर गिविंग द डिटेल्स। अब मेरा आखिरी प्रश्न है सोनल जी से, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने को। सोनल जी अनम्यूट कर लीजिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने पहली मैरिज जिस वजह से भी खत्म हुई है और अब दूसरी मैरिज में आए, जो डॉक्टर आनंद ने कहा कि वो जो कारण होते हैं, कई बार होते हैं, अगर हमने उन कारणों को नहीं सुधारा तो दूसरी मैरिज भी अप्रिय होती है। तो क्या आपने पर्सनल, जब आप बात बताइए, आपने जो भी कारण रहे, किसी की वजह से भी रहे, आपको लगता है कि जो लोग दूसरी मैरिज में जा रहे हैं उनको अपने को पक्का करना चाहिए, अपने उन कारणों को दूर करना चाहिए, अपने को इस तरह बनाना चाहिए कि वो दूसरी मैरिज में पहली वाली जो कमियां थी या गलतियां थी वो ना दोहराएं, जिससे दूसरी मैरिज सक्सेसफुल हो, जैसे आपकी हो रही है? हाँ जी, कारणों को दूर करना चाहिए और दूसरी मैरिज सक्सेसफुल हो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए अपने को।
कुछ भी हो अपना साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो साथ में ही रहना चाहिए। जी शादी की है तो निभानी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी आपका। So viewers, you have seen today, when we talk about the remarriage, first we have to understand why the first marriage could not succeed. If we will not understand those reasons, then whether we go for remarriage, then the pros and cons means that you are going to have the same or more problems in the remarriage. And as Dr. Anand says, that you may go land up for third or the fourth marriage or fifth marriage. So remarriage is not a bad option, but it's not a first option, it's a last option. First you have to see whether your first marriage is how you can make it successful. Many things we have already discussed in many of our earlier programs, and today also so many new suggestions have come. But in case for any reasons, if the first marriage fails, if you want to go for remarry, first analyze those reasons. It should not happen. You will carry the same thing and then you will land up in problems. Otherwise, if you are removing those things, then the remarriage is not a bad option. You can go for that, but see to it that it should be a successful. Thank you very much. And today's program has been live telecasted by V4 News, Carunews, V4 Stream, Malnadu TV India, News 𝐂𝐀𝐑𝐔 𝐍𝐄𝐖𝐒, Samvad Sarokar News, Bharat Post News, Gyan, as well as was shown live on Facebook and YouTube. And our endeavor to bring to you everyday new topic in media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. Tomorrow is a special day. A special day means tomorrow is a World Kidney Day. And we are going to have a program, a special program on World Kidney Day. And our panelists are Dr. S. Vasudevan, Chairman, IMA, that is Indian Medical Association, Organ Donation, as well as he is the professor and head of the department, Urology, Government Medical College, Thiruvananthapuram. Professor Dr. Sunil Shroff, Managing Trustee, Mohan Foundation, Chennai. Dr. Prashant Malla, Medical Director, Professor and Head of the Department, Urology, Andrology, Renal Transplantation and Robotic Surgery, AJ Hospital and Research Center, Mangalore, and Miss Sunaina Singh, CEO, Organ India, New Delhi. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. Thank you very much, Dr. Rajiv Anand. Thank you very much, Ms. Sonal Gada. And thank you, our earlier panelists, Dr. Zinal and Mr. I have forgotten. Siddharth Mr. Siddharth Diwan. Sorry. So thank you all, and thank you all the viewers. I am sure today's program is quite enlightening. As our panelists very, very clearly said, and especially the expert Dr. Anand, try to make your first marriage successful. In case for any reason, first marriage is not successful, don't try to go for the remarriage with the same baggage because of the reason the first marriage fails. Analyze the thing, consult the experts, discuss with them, try to clear the things, then only go for remarriage, then only your remarriage will be a successful. Otherwise, you will have the same problem what you have faced in the first marriage. So thank you very much, viewers, for watching our show. Thank you very much.